नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नए साल के जश्न की तैयारी में जुट गई है पूरी दुनिया। 2021 आने जा रहा है। चंद घंटों के बाद हम 2020 को अलविदा कह देंगे और 2021 का स्वागत करेंगे। 2021 में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करने की जद्दोजहद करेंगे। आइए इसी के बीच एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि चलिए जिंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं। चलिए जिंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं, कुछ बुरा भूल जाते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन बाल बाल बच गए। राजस्थान के सोरवाल में जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी तभी गाड़ी का एक टायर फट गया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, गाड़ी पलट गई। लेकिन इस हादसे में मोहम्मद अजहरुद्दीन को कुछ भी नहीं हुआ। और आपको बता दूं कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक ढाबे में घुस गई और ढाबे में काम कर रहा एक कर्मचारी घायल हुआ है। उसे अस्पताल भेजा गया और जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन को कुछ भी नहीं हुआ इस हादसे में। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी में आधार कार्ड के संशोधन के लिए केंद्र बनाए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने यहां प्रदर्शन किया और रानी तला स्थित पोस्ट ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया सब पोस्टमास्टर को। और सब पोस्टमास्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि कुल्टी के पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा जल्द से जल्द शुरू कराई जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में बहुत सारी गलतियां हैं लेकिन उनके कार्ड का संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में युवा कांग्रेस के नेता सुकांत दास से हमारे संवाददाता ने बात की। और आपको ये भी बता दूं कि ज्ञापन देने के बाद सब पोस्टमास्टर ने यह आश्वासन दिया है कि आने वाले साल 10 जनवरी से यह सेवा शुरू हो सकती है। দাদা আজকে কি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হলো? আর আমাদের যুব কংগ্রেস এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে একটি কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা বিগত লকডাউন তো ছিল, তার মধ্যে তো কোনো কাজ হয়নি। আপনারা জানেন আধার কার্ড পরিষেবাটা কংগ্রেস আমলে এটি গ্রাহ্য করা হয়, এটা আনা হয় স্কিম থেকে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকার চলে যাওয়াতে এটা বিজেপি সরকার আবার নিয়ে আসেন এবং তার ফলে আধার কার্ডের পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আধার কার্ড এখনও পায়নি। যদিও পেয়ে থাকে তো তার মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি আছে, যেরকম নামে ভুল আছে, সারনেমে ভুল আছে, ডেট অফ বার্থে ভুল আছে, অ্যাড্রেসে ভুল আছে। এইসব শাখা কাল সত্ত্বেও আধার কার্ড পরিষেবাটা বর্তমানে প্রায় বন্ধই আছে। কীভাবে হচ্ছে না, প্রাইভেটেশনভাবে হচ্ছে। প্রাইভেটেশন কেমনভাবে হচ্ছে, যার জন্য 1,500 2,000 টাকা যার যেরকম খুশি তারা সেইভাবে কিন্তু নিচ্ছে মানুষ, গরিব মানুষের কাছে যাদের আধার কার্ডে ভুল আছে। কিন্তু এটা তো মেনে নেওয়া যায় না, এটা তো একটা সেন্ট্রাল প্রকল্প, সেন্ট্রাল স্কিম। তাহলে এর মধ্যে টাকা পয়সার গল্পটা আসছেই বা কেন? আর সেন্ট্রাল আর স্টেট দুজনে চুপ কেন আছে? তারা গরিবদের কথাটা কেন বুঝতে পারছে না? আমরা দেখেছি ডিসেম্বর পোস্ট অফিসে রাত্রেবেলায় মহিলাদেরকে বাচ্চা নিয়ে তারা রাত্রেবেলায় রাস্তার মধ্যে শুয়ে আছে, বসে আছে, তাকে সকালবেলায় তাড়াতাড়ি তারা পোস্ট অফিস খুললে লাইন দেবে এবং তারপর ফর্ম পাবে। কিন্তু এইগুলো আমরা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস এরা মেনে নিতে পারছি না। সরকারের অবহেলার জন্য কুলটির মানুষ বাঞ্ছিত হচ্ছে। এরা এই পরিষেবা থেকে পুরোপুরি বয়কট হয়ে যাচ্ছে। তাই যাতে আগামী দিনে আধার কার্ডের পরিষেবাটা ভালো করে কুলটির পাবলিক, কুলটির গরিব মানুষ যাতে পরিষেবাটা পায়, তার জন্য এই যে কুলটি পোস্ট অফিসে আপনার রানীতলায় 1 বছর ধরে পড়ে রয়েছে আধার কার্ড মেশিন, সেই মেশিন পরিষেবা চালু করা হোক। তার জন্য আজকে আমরা রানীতলায় একত্রিত হয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচি, এই বিদ্রোহ, এই আন্দোলন করেছি এবং ডেপুটেশন দিয়েছি। যদি আগামী 7 দিনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে যদি চালু না হয়, পোস্টমাস্টার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে উনি 10 তারিখ পর্যন্ত পরিষেবাটা এখানে চালু করবে, আগামী 10 জানুয়ারি 2021। যদি না হয় তা আমরা অন্য পথ আন্দোলনে বেছে নেব। আপনার নাম? আমার নাম সুকান্ত দাস, আমি কুলটি বিধানসভা যুব কংগ্রেসের সভাপতি। नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को लेकर सावधानियां बढ़ा दी गई हैं। आपको बात बता दूं कि भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है 31 जनवरी तक, जबकि 31 दिसंबर तक यह रोक लगाई गई थी। लेकिन सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि 31 जनवरी तक तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी जाए। लिहाजा 31 जनवरी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। और जिस तरह से लंदन और आसपास के इलाकों में कोरोना की बीमारियां एक बार फिर से सामने आने लगी हैं, नए रूप में सामने आने लगी हैं, उसे देखते हुए यह फैसला भारत ने लिया है और फौरन तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। रानीगंज में जीआरपी के जवानों ने एक अनोखा कदम उठाया है। रेलवे बैरक के पास जीआरपी के जवानों ने आज
ज़रूरतमंद और भूखों में भोजन वितरण किया। भोजन के पैकेट इनको दिए गए जो ज़रूरतमंद थे। आसपास के लोग जो यहाँ पे पहुँचते हैं रेलवे बैरक के पास, उन तमाम लोगों को यहाँ भोजन करवाया गया, भोजन के पैकेट दिए गए उन्हें। और जीआरपी के जवानों ने हमारे संवाददाता को बताया कि भविष्य में भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। समय समय पर हम भूखों को भोजन करवाएंगे ताकि राहत मिल सके ज़रूरतमंदों को, गरीबों को। অবগত হয়েছি সমস্ত পুলিশ ফোর্স অফিসার এবং সিপি পার্সোনাল 4 জন হয়ে গেল। কিন্তু বিশেষ উপলক্ষ বলতে 25শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ এবং মানে নতুন বছর 2021 আগমন উপলক্ষে আমরা একটা সমাবেত হয়েছিলাম এবং কিছু মানে যারা দিন দুঃখী বা তাদের জন্য দিন দুঃখী মানে যারা খেতে খাওয়া মানুষ তাদের জন্য আমরা কিছু মানে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা যতদূর সম্ভব আমরা তাদেরকে হেল্প করার জন্য আগে এসেছি। ইন ফিউচার আমরা আশা রাখবো যে এই বছর যেটা আমি করলাম আগামী বছর এর থেকে বিস্তারিত কিছু করার আমাদের আশা আছে। অতএব আমরা প্রতি বছরই এটা চালিয়ে যাব। এই ইন্টারভিউ আমি শেষ। আমরা রানিংয়ে জিআরপির তরফ থেকে অফিসার ফোর্স এবং সিভিক সবাই মিলে 25শে ডিসেম্বর এবং নিউ ইয়ার্স ডে 2021 উপলক্ষে রানিগঞ্জের স্টেশনের গরিব দুঃখী এবং বাচ্চাদের কিছু আমরা প্যাকেট, যার মধ্যে বিস্কুট, কেকস, মিষ্টি এসব আমরা বিতরণ করলাম। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सेंधमारी का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सेंधमारी की जा रही है तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिशें की जा रही हैं लगातार, और इसमें काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी अपने विधायक, सहयोगी विधायकों के साथ ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं पार्टी में, भाजपा में। और अब जो है ये खबर आ रही है कि जितेंद्र तिवारी जो वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक हैं और पांडवेश्वर के विधायक हैं, वह भी शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि कोलकाता के जिस होटल में जितेंद्र तिवारी अपने परिवार के लोगों के साथ ठहरे हुए हैं, वहां भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है, जिनमें दिलीप घोष, मुकुल राय और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई है, और जिससे ये जाहिर हो जाता है कि हो सकता है जितेंद्र तिवारी बहुत जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाए और भाजपा का दामन पकड़ लें, क्योंकि 9 और 10 जनवरी को बंगाल दौरे पर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगने से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने खबर भेजी है कि सुंदरबन इलाके में केकड़ा पकड़ने गए एक व्यक्ति को बाघ ने मार डाला। एक व्यक्ति केकड़ा पकड़ रहा था एक द्वीप के पास अपने 2 साथियों के साथ, इसी के बीच बाघ ने अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया उस पर, और इस प्रहार में अजय मंडल नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन उनके 2 साथियों ने इसमें बहुत ही साहस से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, और उनके साहस की वजह से उनकी लाश को उनके घर तक लाया जा सका, वरना बाघ उन्हें लेकर जंगल की तरफ भाग जाता। लेकिन उनके 2 साथियों की वजह से उनकी लाश को उनके घर तक लेकर आया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दूं कि इस तरह की घटनाएं इस इलाके में हमेशा होती रहती हैं। केकड़ा पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे अजय मंडल और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इसी क्रम में वह केकड़ा पकड़ने गए थे जंगलों की तरफ अपने 2 साथियों के साथ, तभी बाघ ने उन पर हमला बोल दिया और इसमें उनकी मौत हो गई। बंगाल के पांडवेश्वर से हमारे पास खबर आ रही है। पांडवेश्वर के डालूर बांध में एक सामाजिक संगठन मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया और ज़रूरतमंदों में कंबल बांटे गए। आपको बता दूं कि यहाँ मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा के तौर पर रखा गया और उन्हें सम्मानित किया गया, जबकि ज़रूरतमंदों में कंबल बांटे गए। एक पदाधिकारी से हमारे संवाददाता ने बात की। मीडिया कर्मी को कोरोना योद्धा से हम लोग आज सम्मानित करने का प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कंबल वितरण हम लोग लगभग 300 आदमी का कंबल वितरण कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे प्रवक्ता सीताराम पंडित जी और राजेश वर्मा जी, पिंकी रुईदास और मंजू वर्मा, बेबी दास, ममता
ये सब यहाँ पर उपस्थित होकर के आज बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को किए हैं, आपस में इकट्ठा करके किसी तरह से वो गरीब आदमी को हम लोग दे पाएँ जो हम लोग को सचमुच में लगता है कि ये सक्षम ये व्यक्ति नहीं है किनने का, उसी तक हम लोग पहुँचाने का प्रयत्न किए हैं। जो आज हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि हम उस गरीब लोग को दे पाए हैं जो आज तक उन लोगों को जो भी कंबल वितरण होता था वो नहीं मिल पाता था, आज हम लोग उसको पहुंचा पाए हैं। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए कंबल? आज 300 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंबल। फ्यूचर में प्लानिंग क्या है आप लोग का? हम लोग का फ्यूचर में प्लानिंग है कि और भी समाज का जो भी कमी को जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी संस्था के द्वारा, आज हमारा मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा उनको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। हेल्थ चेकअप से लेकर के आई चेकअप कैंप से लेकर के जरूरत पड़ा तो उनको फ्री में सिलाई सिखाने का, फ्री में नर्सिंग ट्रेनिंग करवा दिया जाएगा जिससे कि वो कुछ बने कि अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। फ्री में उनको ब्यूटिशियन का भी काम हम लोग सिखाने का बहुत जल्द उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस सब पर आगे का और भी चर्चा हम लोग का विचार में आया है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कदम बढ़ते चल जाए, हमारा ट्रस्ट अभी छोटा है, जैसे जैसे सबका आशीर्वाद मिलता रहा तो हम लोग और भी आगे काम करेंगे। आपका परिचय? हमारा नाम हुआ सत्येंद्र प्रसाद, मानव सेवा ट्रस्ट का चेयरमैन है और मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ। धन्यवाद। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई। बेगुनिया मोड़ से शुरू हुई इस रैली में काफ़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक शामिल हुए। आपको बता दूं कि रैली की शुरुआत हुई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, और इस रैली में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों को सामने रखा और कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह बहुत गलत है, और ममता सरकार को एक मात्र विकल्प कहा नेताओं ने। ये रोबिन लायक यहाँ नेतृत्व कर रहे थे इस रैली की। কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে আজকে যুবশ্রী থেকে শুরু করে রূপশ্রী থেকে শুরু করে সবুজ সাথী থেকে শুরু করে অন্নদাতা থেকে শুরু করে গীতাঞ্জলি থেকে শুরু করে একের পর এক 48খানা প্রকল্প মমতা ব্যানার্জি এনেছেন বাংলার মানুষের জন্য। আমরা আগে কখনো দেখেছি যে রাস্তায় বাস ধরার জন্য পথসাথী ভালো বসার ব্যবস্থা আছে? তো আপনাদের দেখতে হবে যে মমতা ব্যানার্জি কি উন্নয়ন করেছেন। আজকে এই করোনা কালে পশ্চিমবাংলার কোনো মানুষ না খেতে পেয়ে মরেনি, কারণ মমতা ব্যানার্জি তাদের রেশনের ব্যবস্থা এবং আমাদের পার্টির যারা নেতৃত্ব আছে, কর্মীরা আছে, মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার, চাল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে। সেই দলের और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।